हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। क्लास 6 की तरह ही क्लास 7 में भी हम पढ़ेंगे हर एक चैप्टर और करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व एनसीईआरटी से रिलेटेड एंड ऑल्सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। We hoped you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6. Right my dear students, आप सबने enjoy किया है अपना curiosity टेक्स्ट बुक पढ़ना, जिसमें चैप्टर 1 याद है क्या था? The wonderful world of science। और उसमें साइंस को सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से नहीं देखा गया। It is not a set of facts. Science is in fact exploration, curiosity, asking questions is all about exploring the world and to reveal the secrets that the world beholds, right students? So it is an invitation to question, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world that we live in. Now the world of science covers everything. छोटी से छोटी चीज़ में, जैसे कि सेल है, लीफ है, उसमें साइंस है। बड़े से बड़े स्टार्स में साइंस है। तो साइंस कहाँ नहीं है? साइंस सब जगह है, राइट? एंड थ्रू दिस बुक, एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स, यू विल बी बिकमिंग अ बिग थिंकर. You will expand your knowledge and also you will be a little explorer. So now next paragraph deals with observation. Class 6 में भी मैंने observation और looking में difference बताया था. Looking में या seeing में मतलब क्या? आप देख रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं देखने के लिए. बट ऑब्जर्वेशन इज वॉट? ऑब्जर्वेशन इज दैट यू आर सीइंग विद full attention and with an intent in mind. That is how big inventions occur. राइट ब्रदर्स को पक्षियों को देख के आसमान में इंस्पिरेशन मिली कि वो भी एक मेटल बर्ड बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं. आज का एरोप्लेन पहले के एरोप्लेन से कितना डिफरेंट है. राइट ब्रदर्स ने जो इन्वेंट किया था उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई, राइट? तो साइंस इज एवर इवॉल्विंग. कुछ इन्वेंट हो गया, कुछ डिस्कवर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब रुक गया. इट इज एवर इवॉल्विंग देयरफॉर. सो दिस पैराग्राफ टोटली डील्स विद ऑब्जर्वेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ observation. Now let us go to the next paragraph, which again deals with what is science, right? So science, as we said in grade 6, is a process. So it is a way of thinking, it welcomes curiosity, asks question and is open to the unknown. अगर कोई चीज़ unknown है तो उसको रिवील करना, उसको known बनाना ही तो साइंस है. और grade 7 में we will try to ask deeper questions, right? हमें एक धाप आगे निकलना है क्योंकि हम grade 7 में आ गए हैं. And we also have to step out of this book. How? Through activities and experiments. हम activities करेंगे, experiments करेंगे और इसको बोलते हैं learning by doing. When you do something, you do it yourself. hands on करते हैं ना, तो याद भी रहता है और concept clarity एकदम 100% हो जाती है. Now next is the interconnection between 4 sciences. क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस. तो क्या कनेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस में? देखिए, फिजिक्स जो है वो डील करता है विद फंडामेंटल लॉज और केमिस्ट्री क्या करता है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट मैटर. एंड Biology well uses physics and chemistry to understand the life processes that the living beings go through. Or earth science integrates these all 3 sciences to understand our earth better. Hopefully the interconnection is clear to you. जब exam oriented questions discuss करेंगे इसको details में ज़रूर हम पढ़ेंगे. Now what are the chapters that are to be followed? देखिए, next chapter में हम पढ़ेंगे about the classification of materials into acids, base and neutral. एसिड्स वो होते हैं जो कि सार टेस्ट में होते हैं, बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं और न्यूट्रल तो न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है. एसिड जैसे विनेगर है, बेसिस जैसे सोप है और न्यूट्रल जैसे पानी है.
तो इस चैप्टर के थ्रू we'll try to ask different questions like why are some fruits sour, what happens when we wash a haldi stain on our school uniform. We'll talk about indicators which help us to determine which is acidic, which is basic and which is neutral. Now in the next chapter we'll talk about electricity. Electricity यानी क्या? Electricity is a form of energy. और electric circuits के बारे में बात करेंगे through which electricity flows. देखिए यहाँ पे एक electric circuit है, तो यहाँ पे wires आपको दिख रही हैं. Wires are necessary for making an electric circuit and a light source जैसे कि bulb है, that is necessary. A cell is necessary or a battery is necessary. Some materials are good conductors of electricity while other materials are not good conductors of electricity. तो हम पढ़ेंगे electrical circuits के बारे में भी and about metals and non-metals too, right? We will classify materials based on their properties and we will also learn about changes around us. There are so many changes around us, right? फ्रूट को बहुत देर तक रख दिया तो वो स्टील हो जाता है. आइस रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है. वाटर को बॉईल करे तो इवेंचुअली इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. So many changes take place all around us and some of the changes are reversible, some of them are irreversible. We'll talk about that too. And some changes happen faster when they are heated. So we'll talk about heat transfer in further chapters as well. Then we'll talk about adolescence as well. Adolescence यानी कि 10 to 19 years का एज. तो इस एज में आप भी हैं और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रही हैं, फिज़िकल चेंजेस खासकर. और फिज़िकल चेंजेस में जैसे बॉयज़ का शोल्डर्स ब्रॉड हो जाता है और लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स पे असर पड़ता है, प्लस फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं. और गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. दैट इज़ टू से उनका जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो अटेन होता है. तो ऑब्वियसली एडोलेसेंस में बहुत सारी चेंजेस आती हैं. तो चेंजेस वैसे आती हैं और हमें फूड की ज़रूरत है हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस ह्यूमंस में होती हैं. ह्यूमंस में ही क्यों बल्कि प्लांट्स में भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं. तो हम एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगे, जैसे एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल. और मिडिल स्कूल ईयर्स में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी चेंजेस होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स for their survival. We'll also discuss about plants also, right? Plants also need food to grow. और हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस अबाउट टाइम. सो द एसेंशियलिटी ऑफ टाइम इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, इन द फर्दर चैप्टर्स, एंड ऑल्सो अबाउट द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड डिस्टेंस एंड अबाउट कंपेयरिंग स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस. विल ऑल्सो गेट टू नो थ्रू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. एंड ऑल्सो व्हाट विल लर्न अबाउट इज अबाउट लाइट्स एंड शैडोज, राइट? तो लाइट्स तो हमें हेल्प करती है कोई भी चीज़ को देखने के लिए. शैडोज क्या है? शैडोज फॉर्म होती है व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय लाइट. और शैडोज फॉर्म होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. तो उसके थ्रू हमें क्या जानना है? वो क्या सिर्फ पपेट शो के लिए है या टाइम पास के लिए है? नो, नॉट एट ऑल. वो हमारे बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि है एक्लिप्सिस, राइट? एक्लिप्स होते हैं, आपको सबको पता है. और एक्लिप्स अभी अभी हुआ ना मार्च में, टोटल लूनर एक्लिप्स. तो बहुत सुंदर ब्लड मून जैसा दिखा. विल डिस्कस अबाउट इट टू लेटर इन द फाइनल चैप्टर. विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सॉल्स्टिसेस, विल डिस्कस अबाउट इक्विनॉक्सेस, विल डिस्कस अबाउट सीजन चेंज. तो बहुत सारे फिनोमेना हमको डिस्कस करना है, बहुत सारे फैसिनेटिंग फिनोमेना एक्लिप्सिस के बारे में. वी नीड टू नो how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth and the earth around the sun, और consequences क्या है इन movements के. We'll discuss all about it. And also in the chapters that follow you'll make simple observations and experiments, and also each chapter helps you
to arouse curiosity, to ask question and explore and do hands-on experiment and think just like a scientist. देखिए साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्लास 11th में कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, साइंटिफिक टेम्पर का होना बहुत ज़रूरी है. एज अ साइंस टीचर आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू टेक अप साइंस, लेकिन एप्टीट्यूड अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, तो आप अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से ही लें, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत ज़रूरी है. विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी विल डू द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस. नाउ व्हाई डोंट वी डू दिस हैप्पी एक्सप्लोरिंग थिंग एज वेल. ये एक्टिविटी क्यों करवाया गया है? ये एक्टिविटी इस वजह से करवाया गया है तो अराउज क्यूरियोसिटी. आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग भी आनी चाहिए ना. क्वेश्चंस नहीं करोगे तो हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करोगे? हाइपोथेसिस फ्रेम नहीं होगा तो गेसेस को टेस्ट कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू? गेसेस टेस्ट नहीं होंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, देन हाउ विल यू कम टू एनी कंक्लूजन? एनालिसिस नहीं होगी, थ्योरी अप्रूव नहीं होगी, आपके गेसेस तो गेसेस ही बन के रह जाएंगे, राइट? सो आस्किंग क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जस्ट ऐड सम मिल्क. तो हम क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि माई पास्ता वेंट ड्राई, व्हाट शुड आई डू? द आंसर इज जस्ट ऐड सम मिल्क, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बिकॉज द कैट्स टीथ वेयर क्रूकेड. यानी कि क्वेश्चन कैसा बनाना है कि द कैट वॉज नॉट एबल टू च्यू ऑन द फूड, वाई? The answer is because the cat's teeth were crooked. ऐसे ही आप creative questions लेके आइए अपने दिमाग में. Don't panic, I have my towel. So this is very obvious that the person is wet and he wants to dry himself off, right? So what would be the question? I am wet. What should I do? Statement number 4, 42. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना. व्हाट इज 32 + 10? मेरे दिमाग में क्या आ रहा है दैट गिव अ 2-digit नंबर विच हैज द 10th प्लेस डबल देन द 1st प्लेस. अगर आपके दिमाग में और डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लिख दीजिए कमेंट में. हमारा साइंटिफिक प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक. हैप्पी लर्निंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.